Hello, students of class 11th. We were discussing nervous system, and in that we have covered central nervous system and two components of the peripheral nervous system. Okay, the nervous system, ENS में somatic nervous system we have covered, autonomic nervous system also we have covered. Now we will see enteric nervous system. Oh, sorry. These components of the peripheral nervous system has been covered. Somatic ANS, okay, autonomic nervous system. Autonomic nervous system के तीन अंग हैं, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system and visceral और enteric nervous system. तो ये सब हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है. Now we will see enteric nervous system. Okay. Can you see this picture? I will explain this picture to you. Before that, first learn about what is enteric nervous system. It is also called as intrinsic nervous system. Okay? And it is one of the main divisions of autonomic nervous system. There are three divisions. Okay, this is one of them. And it consists of mesh-like. Mesh मतलब जाल. Mesh-like systems of neurons. Okay. And these neurons govern the functions of the gastrointestinal tract. Tract. It acts independently of the other two components of the autonomic nervous system. It acts independently of the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. But ENS is influenced by them. Independently work कर रहा है
लेकिन इनके द्वारा इन्फ्लुएंस यह हो सकता है, इसके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा उसका कुछ प्रभाव इस पर पड़ सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। अदरवाइज एट द बेसल रेट, बेसल लेवल, it works independently. That's why it is called as the second brain. Okay. Thus, hence, it is nicknamed the second brain. Why? Because brain works independently. So it is the second brain. Okay. So it works independently of brain and spinal cord too. यानी सीएनएस से भी यह इंडिपेंडेंट है, उस पर निर्भर नहीं है। देख लिए। बट वेगस नर्व की ब्रांचेस इस सिस्टम में एंटर करती है। वेगस नर्व हो गया आपका 10th क्रेनियल नर्व। ओके, लेकिन हम कह रहे हैं इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कैसे हुआ इंडिपेंडेंट? जब वेगस नर्व इंटरवेन किए हुए है ऑटोनॉमिक नर्व एंटेरिक नर्वस सिस्टम को, देन हाउ डिपेंडेंट है। Experimentally, it has been seen that if vagus nerve is severed or cut, okay, in healthy individuals, इसमें कोई आदमी तो करने देगा नहीं, हेल्दी आदमी करने देगा अपना वेगस नर्व काटने देगा कोई नहीं। एक्सपेरिमेंटल हम लोग के ऊपर नहीं हो सकता। रैट में, माइस में, रैबिट में, ये भी मैमल्स हैं, इन अदर मॉडल एनिमल्स वेगस नर्व इज सीवियर्ड, then also it is working enteric nervous system. That's why we are saying that it is independent of brain and spinal cord. इंडिपेंडेंट है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक से भी, लेकिन वह इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको। सिमिलरली ब्रेन कैन इन्फ्लुएंस, but even if the connection is cut, it remains functioning. समझ गए इस बात को? अब देखिए करता क्या है। न्यूरॉन्स ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल the motor functions of the of this motor function of this system। कौन सा सिस्टम? ये जो नर्वस सिस्टम, उसका उस सिस्टम का मोटर फंक्शन इसी ईएनएस के न्यूरॉन्स करते हैं। ओके, मोटर फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, हाँ, मोटर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। इस मोटर फंक्शन के सिस्टम में क्या है, क्या करेगा वो? इट विल
स्टिमुलेट और काउज लिख दीजिए, विल काउज या स्टिमुलेट ही ज्यादा अच्छा है, स्टिमुलेट the secretions of gastrointestinal enzymes ओके तो यह इसका फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन। ओके, now I will explain this picture to you what it says. This is the diagram of enteric nervous system. Can you see it? It is A part and B part. The A part is the cross-sectional view. Of the enteric nervous system. Here you are seeing that this ENS is embedded in the wall of the gut. This is the cross section of the gut alimentary canal. You see intestine का, small intestine का cross section. Okay. So you see, this is the intestine. You can see a muscular projection over here. कोई ट्यूब है, अगर उसको लटकाना है, कैसे लटकाओ? उस ट्यूब को अगर बैग में डाल के बैग को हुक से लटका दिए, ट्यूब को डायरेक्ट लटका देंगे तो क्या होगा? ये ऊपर का लेयर जो है गट का, दैट विल बी डिस्टर्ब. ओके, so there is a muscle attached to it, smooth muscle called as mesentery, and then mesentery is attached to the body wall. Intestine, outer layer में mesentery, muscular smooth muscle layer is there, and that one is attached to the body walls. That is being seen you here. This is mesentery. Okay. Now you see, here you are seeing that afferent sensoric neuron, it is intervening. तो यह सेंसरी न्यूरॉन इसमें जा रहा है. ये सेंसरी किसका है? This will catch the sensation from the gut, whether food is present or not. If present, what is the amount, at which location, the nature of food, the chemical nature of food, whether it is protein or carbohydrate. So accordingly, those substances will be released. Okay? उसके एंजाइम्स अलग अलग होंगे इसलिए. So एक सेंसरी न्यूरॉन चाहिए ताकि वो सेंस कर सके, सेंसर की तरह. तो इनके सेल बॉडी जो है वह है आपके गैंग्लियन में या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, और उसका एक्सॉन है इधर. सो द सेंसरी न्यूरॉन्स आर देयर. इनके एक्सॉन्स इन्वॉल्व हैं स्मूथ मसल के न्यूरोमस्कुलर प्लेट पर. Then you are seeing efferent parasympathetic neuron and efferent sympathetic neuron also intervening this. Efferent means motor. Okay, the cell body is inside this, and the axon is going towards the central nervous system. इसका सेल बॉडी अंदर है, सॉरी सेल बॉडी बाहर है, एक्सॉन इज टुवर्ड्स द गट. ओके,
Here you are seeing the several layers of the gut. The innermost layer is called mucosa. Then comes submucosal plexus. Okay? Beneath the mucosa, there is a submucosa. In that submucosa, there is a network of neurons. Then you are seeing in this layer the circular muscle. Okay, and then myenteric plexus, this one. So ऊपर में आओ, so this one is mucosa. Okay, no, the mucosal layer is this one. ये हो गया म्यूकोसा, जो हम माइक्रोविलाई दिख रहा है, ये अंदर में खाली है, ट्यूब है, ये माइक्रोविलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये हो गया म्यूकोसा, ब्लैक डॉट पे जा रहा है म्यूकोसा, and this one is submucosa. Then comes the circular muscle. Then in this layer, myenteric plexus. This one is the longitudinal muscle, smooth muscle. Okay. And then the outermost layer, serosa. यहाँ पर सिरोसा की पतली लेयर है, और सिरोसा इज अटैच टू द मेसेंटेरी. ओके, ट्यूब में सर्कुलर मसल भी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, डिफरेंट लेयर्स. सो दिस ट्यूब कैन स्क्वीच and it can elongate also. Elongate and screech, elongate and screech. This section is showing, it is the magnification of this. So one layer is, this much layer is magnified. Okay. आगे हम आपको इंटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे, याद दिला देना. यहां पर है सबम्यूकोसल प्लेक्सस, दिस वन, and myenteric plexus. These two layers, in these two layers, there is a network of neurons. पूरा न्यूरॉन का नेटवर्क है. Here, in this layer, and in this layer, जो ग्रीन से है. Okay. There is network of neurons in, बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो myenteric plexus and submucosal plexus. Okay. And these two neurons present in myenteric plexus and submucosal plexus are connected by interneurons. उसके रेंज को बढ़ा दे रहा है इंटरकरेंट, बीच में कुछ जोड़ दिए तो रस्सी लंबा हो गया. Interneurons. Okay. Can you see in this picture those interneurons?
हम्म? दिस इज ओरल साइड, दिस इज अबोरल साइड, इधर माउथ की तरफ है, दिस इज एनस की तरफ। सी, यू हैव टू फाइंड इट आउट। क्लियरली दिख रहा है आपको? This is submucosal plexus. This pink colored is the layer of circular muscle. And this is myotonic plexus and longitudinal. The myotonic plexus is इसका cell body है. जैसे green colored, आपको red color दिख रहा है? These are not the interneurons. Right. This one is also not the interneuron. लेकिन दो न्यूरॉन्स के बीच में these gray ones, but this one you can see, this one is the interneuron. This is also not interneuron. But this one is interneuron. Not interneuron. This are also not interneuron. This is also not interneuron. This one is interneuron. Okay. Here you will see extrinsic efferent intervention. Efferent intervention of parasympathetic and sympathetic both. यहां से आ रहा है मेसेंटरी के नहीं, यहां से नहीं, सॉरी, इधर से आ रहा है मेसेंटरी के थ्रू। मेसेंटरी इधर है, ये तो गट हो गया, ल्यूमेन है। इधर से पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक बोथ न्यूरॉन्स आर इंटरवेनिंग। ये जो यहाँ इंटरवेन हो रहा है, इधर से ही हो रहा है ना? The extrinsic efferent intervention is via autonomic sympathetic nervous system. Okay. And parasympathetic pathways contribute to the regulation and coordination of GI function. So here you, in this picture, you will see these two types of neurons, blue one and the green one. Can you see? So the here sympathetic ones are the, in this picture, green. Green वाला sympathetic, blue वाला parasympathetic. And you are seeing parasympathetic and sympathetic both are mingled here. Orange ones are the sensory ones. You will not be able to differentiate here structure by, बस आप ये समझ लो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बना रहे हो गया। Extrinsic afferent sensory nerves, that is orange in color, this one, is following either the vagal root or the spinal roots. Okay.
So what you will see here, ascending and descending, both types of excitatory motor neuron. Green one is the excitatory one and inhibitory neurons are the blue ones. तो ग्रीन हो गया एक्साइटेटरी, ये हो गया sympathetic nerves, and the blue ones are parasympathetic nerves. इपान कहते हैं इंट्रिंसिक प्राइमरी अफरेंट न्यूरॉन को, इंट्रिंसिक प्राइमरी अफरेंट न्यूरॉन। ये स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, आईसीसी। ठीक है, ये हो गया इंटर न्यूरॉन, देखो ग्रे कलर वाला आईसीसी इंटर न्यूरॉन है। इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, सीए, स्पेशल तरह का इंटर न्यूरॉन। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल, कजाल। ठीक है, अब ये ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ काम। स्ट्रक्चर देख लिए, गट का स्ट्रक्चर बनाओगे, डिफरेंट लेयर्स बनाओगे, और उसमें इन दो लेयर्स में इस नर्वस सिस्टम का प्लेक्सस है, जाल, इसमें माइंटेरिक प्लेक्सस में एंड सब म्यूकोसल प्लेक्सस। तो इन दोनों में जो नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, तो वो सर्कुलर मसल लेयर को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन इन लेयर्स में जाल नहीं, जस्ट क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पर नेटवर्क इस सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल मसल को भी ट्रैवर्स कर रहा है। कौन ट्रैवर्स करेगा? एफरेंट सेंसरी एंड इफरेंट मोटर, बोथ आ रहे हैं बाहर से, ये इसको ट्रैवर्स करके यहाँ पर उसका जाल बना, नेटवर्क हुआ, फिर उस जाल के जो ब्रांचेज हैं वो ट्रैवर्स किए, और यहाँ पर सब म्यूकोसल में फिर और उसका जाल, प्लेक्सस। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, बुक है स्ट्रक्चर वाइज नर्वस सिस्टम और फंक्शन वाइज हम आपको कवर कर दिए हैं। थोड़ा देर के लिए बुक देना। Neurons as a structural and functional unit of न्यूरल सिस्टम। इस न्यूरल सिस्टम को आप अब समझिए, इनके सेल्स को। ये अभी तक हम ओवरऑल पूरा नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप देखें। नाउ वी आर गोइंग इनटू माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि किन तरह के सेल्स से यह बना हुआ है, उनके सेल्स कैसे। तो इस नर्वस सिस्टम का जो स्पेशल सेल है, जो प्राइमरी सेल है, उसका नाम है न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन्स ही है सिर्फ, न्यूरॉन्स के अलावा भी अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और न्यूरॉन्स भी स्पेशलाइज्ड हैं। अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हैं जिनसे यह नर्वस सिस्टम बना है।
ओके, आपके बुक में सिर्फ एक तरह का न्यूरॉन यहाँ बताया है, हम कुछ और तरह का भी न्यूरॉन्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। ले जाओ बुक। Okay, first thing first, I should include one picture of a neuron. Okay. Okay, students, we will see now the primary cell type of the neural system. Then we will be able to understand how the action potential travels the long distance in our body quickly. Okay, so for that you should learn the structure of neurons. Neurons. Include the picture of दिख रहा है दोनों फोटो? See, first thing first, what are these neurons? Hmm? इसे हम न्यूरॉन या नर्व सेल के रूप में जानते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल। Okay? It is an electrically excitable cell. No other cell is electrically excitable except neurons that fires electrical signals, and these electrical signals are called, बोलिए, called action potentials. ठीक है, क्योंकि इसमें क्षमता है, पोटेंशियल है कोई एक्शन करवाने का इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसीलिए हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। कहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है? ये अपने में, और फिर सेंड भी कर रहा है। पहले खुद में जनरेट हो रहा है एंड देन इट इज सेंडिंग। तो अक्रॉस ए न्यूरल नेटवर्क, ये लगा दो। ओके, these neurons communicate with other cells via synapses. Okay, so you can say neurons communicate with other cells
अदर सेल्स के साथ कम्युनिकेट किया हुआ है, आप देखे थे न्यूरोमस्कुलर प्लेट में nerve cell is communicating to the muscle cell, skeletal muscle cell. Okay. We enteric nervous system में आप देखें neurons are communicating to other cells, the cells present in the gut, the glandular cells particularly, to stimulate those for the secretions. The neural cells are, you have seen in the last class, and a spinal cord, a nerve from the spinal cord is reaching directly to the adrenal gland. There also it is stimulating the glands to secrete. Okay. Pituitary gland से secretion, ये सब gland से, endocrine gland से secretion, ये nervous system द्वारा controlled है. So neurons communicate with other cells via synapses. Okay, synapse क्या है? ये है specialized connections that commonly use minute amounts of chemical neurotransmitters to pass the electric signal कहाँ से? From presynaptic neuron to the target cell. Okay. Target cell through the synaptic gap or cleft, bracket closed. ये हो गया synapse का definition. यहाँ से यहाँ तक. These are specialized, synapses are specialized connection. Synapse है, दो न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, ये कनेक्शन है, लेकिन उसमें दोनों न्यूरॉन्स डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं. There is a gap, synaptic cleft है. Okay. Neurons communicate with other cells via synapses. In other cells में दूसरे neurons भी हो सकते हैं, या skeletal muscle भी के भी cell हो सकते हैं, या glandular cells हो सकते हैं. So synapses are specialized connections that commonly use minute amounts of chemical neurotransmitters to pass the electrical signal from presynaptic neuron. Synapse के पहले वाला जो न्यूरॉन है उससे to the target cell. Presynaptic cell neuron, synapse के अंदर synaptic cleft हो गया. उसके बाद the next cell है the target cell. हो सकता है वो कोई न्यूरॉन ही हो, या कोई मसल हो, या ग्लैंडुलर सेल हो. Okay. So what you are observing here is neurons are basically the target cells. Primary cells. मुख्य है,
प्राइमरी सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल, ओके, या कहिए इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का मेन कंपोनेंट, ठीक है। नर्वस टिश्यू में आप ग्लायल सेल्स भी पाओगे, यहाँ आप न्यूरॉन्स में देख रहे हो माइलिन शीथ, ओके, ये स्वान सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड है, स्वान सेल्स आर देयर, ओके, और भी अदर टाइप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन यह मेन कंपोनेंट, ओके। तो नर्वस टिश्यू का, कोई भी टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। टिश्यू मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू इन ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स में, जितने भी एनिमल्स हैं, बट दो फाइलम ऐसा है जिसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट, अभी तक डेवलप होना शुरू ही नहीं। दीज आर द प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, दीज आर प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स, इवोल्यूशन में अभी नर्वस सिस्टम नहीं आया, ठीक है। बताइए प्रिमिटिव फाइलम, पोरीफेरा, प्लाकोजोआ, these two phylums you will not find nervous tissue, nervous tissue in all animals except porifera यानी sponges and placozoa, छोटा फाइलम है ये प्लाकोजोआ। क्या वो तो मेजर फाइलम हम बताए, स्पॉन्जेस, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, निगेरिया, एस्कियलमेंथिस, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकिनोडर्मेटा, ये सब इन्वर्टिब्रेट मेजर फाइलम्स, बड़े फाइलम। माइनर फाइलम्स भी बहुत सारे हैं, 50 माइनर फाइलम। एनिमल किंगडम इतना छोटा थोड़ी है कि 10 फाइलम में सिमट गए, बहुत डाइवर्सिटी है एनिमल्स, ठीक है। एक फाइलम है जिसका नाम है टार्डिग्रेडा, सुने हो? टार्डिग्रेड्स, उस पे एनिमल्स बिलोंग करते हैं जिनका नाम है टार्डिग्रेड्स। इन्हें इमॉर्टल एनिमल्स कहा जाता है, मरते ही नहीं, ऐसा एनिमल है, अमर है वो, 10,000 साल तक जिंदा रहे। टार्डिग्रेड्स, तुम लोग तो जानते हो कि कछुआ सबसे ज्यादा जिंदा रहता है, ये नहीं जानते हो आज तक? कछुआ किसमें, वर्टिब्रेट में है सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन उसका, रेप्टिलिया, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में जो एनिमल्स हैं वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। जेली फिश 1,000 साल उम्र होता है उसका, 500 साल उम्र होता है। टार्डिग्रेड ऐसा एनिमल है, उसको तुम बॉयल कर दो पानी में, नहीं मरेगा। रेडिएशन में रख दो, यूवी लाइट में छोड़ दो, एक्सरे लाइट में उसको दिन भर छोड़ दो, एक्सरे मशीन में, नहीं मरेगा, इतना जबरदस्त। वैक्यूम में छोड़ दो, कोई हवा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इवन नहीं है, तो भी नहीं, उसका डेथ होता है। ऑक्सीजन लेस है वैक्यूम भी, तो भी नहीं डेथ होता। एक्सट्रीम टेम्परेचर में उसको डाल दो तो भी नहीं मरेगा, एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हीट में भी। बहुत खेतर एनिमल है, तो हम एक बता रहे हैं ना, एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इस सब पर बहुत रिसर्च हो रहा है अभी, टार्डिग्रेडा पर, जेली फिश पर,
These are immortal animals. कि उससे कुछ हम सीखें, कुछ आइडिया लें कहाँ पर, क्योंकि सब एनिमल ही हमारे एंसेस्टर है, वो कजिन है, वो टार्डिग्रेडा का कजिन का एंसेस्टर हमारा एंसेस्टर एक ही था कभी, बहुत पहले। तो खैर, और आपके प्लांट्स में भी नहीं है यह सिस्टम, फंजाई में भी नहीं है, सिर्फ एनिमल्स में है, और उसमें पोरिफेरा और प्लाकोजोआ को छोड़ के बाकी सब फाइलम में। या नर्वस टिश्यू। ओके, अब जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी भी नर्वस सिस्टम की बढ़ती जा रही है, बट प्रेजेंट है प्लाकोजोआ ऑनवर्ड्स। इट इज क्लासिफाइड न्यूरॉन्स fired into three types. और फंक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। आप जानते हो नाम, एक है सेंसोरी न्यूरॉन, these sensory neurons receive stimulus such as touch, okay, cold, ये सब, टेस्ट, स्मेल, विजन, ये सब सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, बिकॉज दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। कैसे स्टिमुली? जैसे टच, साउंड, लाइट, एटसेट्रा। ये सब स्टिमुली बाहर से आया, बॉडी के बाहर से, इन सेंसरी न्यूरॉन्स ने उसको रेस्पॉन्ड किया। okay? हमारा स्किन सेल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लाइट इस पर भी पड़ रहा है, ये इस पर भी आवाज पड़ रही है, नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन टच का रेस्पॉन्ड है, रेस्पॉन्स है, तो उस स्टिमुलस को स्किन सेल रिसीव नहीं कर रहा है। ओके, जो हमारा डर्मिस में नर्वस सिस्टम है मौजूद, पेरिफेरल नर्व्स के जो ब्रांचेज हैं, वह रिसीव कर रहे हैं इन सेंसेशन को। ओके, and these sensory neurons respond to the stimuli and then sends the signal to brain and spinal cord, रिसीव किया और सेंड कर दिया। दूसरा, मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा टाइप का न्यूरॉन। व्हाट इट डज, इट रिसीव्स signals from the brain and spinal cord to control everything, सब कुछ कंट्रोल में किया हुआ है, एवरीथिंग फ्रॉम मसल कंट्रैक्शन टू ग्लैंडुलर आउटपुट।
Okay. The third type of neurons is interneurons. Okay. Interneurons, basically these neurons connect neurons to other neurons. Neurons to other neurons. एक्सटेंडर है बस. Within the same region. Within the same region छोटा होता है ये इंटरन्यूरॉन, जैसे ब्रेन के कॉर्टेक्स में ही दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरन्यूरॉन, कॉर्टेक्स के अंदर. तो इसके एक्सॉन उतने लंबे नहीं. इंटरन्यूरॉन कॉर्टेक्स और मेडुला को कनेक्ट नहीं कर रहा है, हालांकि मेडुला में सिर्फ एक्सॉन ही है. तो आप समझ लीजिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डिफरेंट न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरन्यूरॉन्स. अभी आपने देखा था एंटेरिक नर्वस सिस्टम. ओके. दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरन्यूरॉन्स वहां भी है, विद इन द सेम रीजन, उस एक प्लेक्सस के ही अंदर. इंटरन्यूरॉन्स. ठीक. Now coming to the structure of a typical neuron. So here you can see in this picture. बुक में देखिए. A typical neuron is consisting of तीन पार्ट आपको प्रोमिनेंटली विजिबल होगा इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में. बताइए. सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन structure. So neurons consists of cell body, जिसे हम सोमा भी करते हैं, डेंड्राइट्स and a single axon. एक्सॉन सिंगल है, सेल बॉडी भी एक ही है क्योंकि एक ही सेल है, ये एक ही सेल बॉडी होगा. बट डेंड्राइट्स कई है, ब्रांचेज है. ओके. 1 2 and 3. वन बाय वन पिक्चर में देखिए. दीज आर द डेंड्राइट्स. द प्रोजेक्शंस, short projections, many short projections which are coming out of the cell body are called dendrites. These dendrites are highly branched. Okay? Here you will find the nucleus. These are the dendrites, branched one. There is
this portion from where the axon is emerging is called as axon hillock. और साथ ही साथ इस सेल बॉडी के अंदर यू विल फाइंड ग्रेन्यूल्स. क्या बोलते हैं इन ग्रेन्यूल्स को? देखो बुक में नाम होगा एन से, नेसर्स. नेसल्स ग्रेन्यूल. स्पेलिंग कहिए. granules, yes, Nissal's granules. Okay, these granules are found in the dendrites also, but not in axon. Okay, dendrite और axon का पहचान हो जाए. और Nissal's granule में आएंगे हम. Nissal's granule होता है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुने हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, rare and sail. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ रेटिकुलम. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टुकड़ा है, यह ग्रेन्यूल्स. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स attached on the cisternae, external surface of the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी है, पैरेलल सिस्टर्नी, उसमें बाहर की तरफ the ribosomes are attached. Okay, these ribosomes are endoplasmic reticulum है. Smaller subunit of ribosome, larger subunit. तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं. And these are the sites of protein synthesis. बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है नेसल्स ग्रेन्यूल्स. आपको पता होगा राइबोसोम are the sites of protein synthesis. Okay, and ribosomes are attached to the endoplasmic reticulum also. It is found freely in the cytoplasm also. यहाँ पर वैसे. Okay. So the nasal granules are endoplasmic reticulum. Okay. Now come. Soma क्या है? Cell body. It is a compact structure. Okay. जबकि डेंड्राइट और एक्सोन जो है यह है फिलामेंटस. मेंटस स्ट्रक्चर है ना, फिलामेंट की तरह. फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ओके, सो ये फिलामेंट्स, these are basically the filaments which are extruding from the soma. Okay, in this the axon, this one axon leaves the soma at a swelling
called एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक से ही एक्सॉन निकलेगा, ये सेल बॉडी में स्वेलिंग। called axon hillock, and it travels, यानी axon travels for as far as 1 मीटर। 1 मीटर तक यह लंबा हो सकता है, यहाँ से लेके वहां तक इतना बड़ा हो सकता है एक्सॉन, एक ही सेल है। far as 1 मीटर in humans। Okay? This axon branches it branches, इसमें ब्रांचिंग भी होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। See, it branches but usually maintains the same diameter, more or less, एक ही मोटाई के साथ ये पूरी लंबाई तक है। सेम को जगह कांस्टेंट लिखिए, ये एक्सॉन के बारे में लिख रहे हैं। The next point, the third point for the axon is at the farthest tip, distal end पर, at the farthest tip of the axon are axons are axon terminals। See, you can see here axon terminal। Where the neurons can transmit a signal across the, बोलिए, synapse to another cell। ठीक है, समझते जा रहे हो? न्यूरॉन्स, एक बात और समझ लीजिए, न्यूरॉन्स में लैक
डेंड्राइट्स, और हैव नो एक्सॉन। ऐसे न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं जिनमें ना डेंड्राइट है ना एक्सॉन है, तो क्या है, सिर्फ सोमा है। ओके, तो वो वैसे न्यूरॉन्स क्या कहलाएंगे? These neurons are undifferentiated neurons. अभी बन ही रहा है न्यूरॉन्स, डेवलप हो रहा है, बच्चों में होता है ऐसा। undifferentiated neurons, and these undifferentiated neurons are called as neurite. ये सब छोटा छोटा चीज एकदम ध्यान में रखते जाओ, कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। व्हाट इज न्यूराइट? undifferentiated neuron, differentiated neuron, undifferentiated nerve cell, muscle cell, differentiated. So option आ जाएगा. If you know it correctly, you can answer correctly. Undifferentiated neurons are called as neurite, and they lack dendrites and axons. Okay, so these type of neurons are found in children. Now coming to this part, dendrite. Most neuron, dendrites का क्या काम है? ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है। इस डेंड्राइट, ये अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो अगर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो इसके डेंड्राइट्स किसी एक्सॉन के ब्रांचेस से साइनेप्टिक बल्ब के थ्रू या एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, अगर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो यहाँ पर सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, तो इसके एक्सॉन से, तो ये हो गया प्री साइनेप्टिक। ये सब समझते हैं ना, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, कल बता रहे थे। तो यह यहाँ से रिसीव कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? सिग्नल इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन। तो दिस फ्लो इज यूनिडायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक्सॉन से सेल बॉडी और देन डेंड्राइट, डेंड्राइट सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन। तब आप आइडिया लगा सकते हो सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट हो रहा होगा। उसका डायरेक्शन जब ऐसा है तो सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी समझ लो कि आंख है जैसे, ठीक है, तो उसके रेटिना पर होंगे ये न्यूरॉन्स। अब रेटिना के पीछे है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, भीतर है, कॉर्टेक्स में है, बाहर है, ये अभी बाद में की बात, आगे पर रेटिना में है। और वो सिग्नल भेज रहा है किसको? ऑप्टिक फाइबर को दे रहा है, सेंसरी है, नर्व फाइबर। अब आप अनुमान लगा लीजिए, डेंड्राइट किधर होगा, सेल बॉडी किधर होगा, एक्सॉन किधर होगा। यहाँ से विजुअल इंफॉर्मेशन गया लाइट का सिग्नल, तो सेल बॉडी तो होगा वही रेटिना में। डेंड्राइट वहां पर रेटिना में होते हैं बाइपोलर्स, इस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये सिग्नल रिसीव कर रहा है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो एक्सॉन ऑप्टिक फाइबर में क्या है, ऑप्टिक नर्व फाइबर में क्या है, एक्सॉन है, तो उसका सेल बॉडी रेटिना में, और वो एक्सॉन गया
CNS, ब्रेन में। अब मोटर का क्या होगा? सेल बॉडी, सिग्नल ऐसे फ्लो हो रहा है ना, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन। तो मोटर न्यूरॉन्स का सेल बॉडी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं उनका सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही है। फिर और एक्सॉन गया पेरिफेरी की तरफ, ग्लैंड में या स्केलेटल मसल। समझ गए इस कंसेप्ट को? इसको आप अगर याद रखो, समझ जाओगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम डेंड्राइट टू सोमा टू एक्सॉन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। ओके, तो डेंड्राइट के बारे में आप ये कहोगे कि मोस्ट न्यूरॉन्स receive signal from dendrites फ्रॉम की जगह वाया लिखना ठीक रहेगा, वाया डेंड्राइट्स। Sometimes signal is directly received in the soma also, particularly motor neurons के। तो यहां लिख दो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो वही है, सोमा से फिर एक्सॉन में जाएगा एंड सोमा। तो मोस्ट न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल वाया डेंड्राइट्स एंड सोमा। And sends out signals down the axon। अब बना लोगे डायरेक्शन यहाँ, डेंड्राइट से सेल बॉडी, उसी बात को यहाँ सेंटेंस में लिखे हैं। यस कि नो? ज्यादातर साइनेप्सिस में, इन मेजोरिटी ऑफ द साइनेप्सिस, एट द मेजोरिटी ऑफ द साइनेप्सिस, क्यों साइनेप्स का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि डेंड्राइट साइनेप्सिस में इन्वॉल्व है। सिग्नल्स क्रॉस फ्रॉम axon of one neuron to a dendrite of another dendrite of another neuron। समझते जा रहे हो? लाइन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी
However, ऐसा भी देखने को मिलता है कि synapses can connect, ज्यादातर में यही है, कहीं कहीं पर ऐसा भी है। कैसा? synapses can connect an axon to another axon, or a dendrite to another dendrite. ओके, कहने का मतलब हुआ कि एक्सॉन से साइनेप्स में गया सिग्नल, एंड साइनेप्स से डेंड्राइट में गया सिग्नल, और डेंड्राइट से फिर सोमा में आया, और फिर एक्सॉन में आया, है ना। ये हो रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ओके, अब इस एक्सॉन के पास भी सिग्नल आया सोमा से और ऊपर डेंड्राइट से, समझे। साइनेप्स है यहाँ पर, इस साइनेप्स के एक तरफ एक्सॉन और दूसरी तरफ रिसीविंग एंड पर डेंड्राइट, ज्यादातर केस में। लेकिन हॉवेवर यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि यू विल फाइंड एक्सॉन एक्सॉन कनेक्शन on both side of the synapse, axon फिर एक्सॉन। और डेंड्राइट से फिर साइनेप्स, फिर डेंड्राइट at few locations। समझते जा रहे हो? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपना बोलने की जरूरत है नहीं, समझ रहे हो। कुछ सवाल हो तो पूछोगे तो हम फिर एक्सप्लेन करें। ओके, तो ओवरऑल you are seeing here the signaling process is सिग्नल प्रोसेस ट्रेवल कर रहा है, सिग्नल, and this signal is partly electrical and partly chemical। ये कंप्लीटली केमिकल नहीं है और कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल नहीं है, क्योंकि साइनेप्स में आप देख रहे हो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो जो नैरो रीजन है उसमें केमिकल के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। तो इट इज पार्टली इलेक्ट्रिकल एंड पार्टली केमिकल। ओके,
So you have learned the general structure of neurons. I have not explained you the types of neurons yet. Only the functional types I have explained. Basically, sensory, motor, and inter neuron. ये फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए यहाँ लिखा हुआ यूनिपोलर बायपोलर स्यूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। तो आप कहोगे कि न्यूरॉन्स आर, ये फंक्शन में ही अभी चल रहे हैं हम, सब न्यूरॉन्स आर, ये बात भी कह दिए, पार्टली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल। Why? Because of, due to maintenance of voltage gradients इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो फिजिक्स में? पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज वोल्टेज? टेल मी देन। नहीं पता? पढ़ो जाके बढ़िया से। क्या करते हो तुम, कैसा पढ़ते हो? पता ही नहीं रहता है, क्या फायदा पढ़ने का है? अरे अभी है ना, 11th में होगा ना फिजिक्स में? नहीं है तो बोलो नहीं पढ़े हैं, तो बोल रही है हाँ पढ़े हैं, बोल रही है। सी, एक होता है चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट। ये सब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है नेचर का, जैसे मास, लेंथ, चार्ज, ग्रेविटी, दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स। होगा ही होगा, धरती पर भी होगा, कहीं भी होगा यूनिवर्स। ओके, और सब जगह ये इसके जो ये नेचुरल लॉज, प्रकृति के नियम, ये सब एक ही तरह से गवर्न करेंगे। ठीक है, वो जो फोर्सेज हैं वो जिन चीजों पर निर्भर करते हैं वो यहाँ भी उन्हीं चीजों पर निर्भर करेंगे और भी कहीं हुई उन्हीं चीजों पर निर्भर। एक फंडामेंटल थिंग है ये चार्ज के एक्यूमुलेशन से। सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आप निगेटिव पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन में है, and the protons are bound very strongly with the neutrons by strong nuclear force। बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वह प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाउंड है।
प्रोटोन प्रोटोन बाउंड है। सोचिए, प्रोटोन भी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा प्रोटोन भी। कोई मॉलिक्यूलर कोई एटम है जिसका, जैसे कार्बन का ही उदाहरण ले लीजिए, 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स हैं। हर प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज इसी छोटे से न्यूक्लियस में कॉम्पैक्टेड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों ना एक दूसरे को रिपेल कर देता है, सेम चार्ज नहीं कर सकता रिपेल, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब उस न्यूक्लियस के अंदर आर बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा तो क्या होगा, फीसन हो जाएगा, न्यूक्लियर फीसन, FISSON। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब अलग होगा तो मास तो इसी में है, किसी भी चीज का जो मास है, जो भारी है, वो मास आ रहा है न्यूक्लियस से उसका, और एटम के जिन जिन जितना एटम से बना हुआ है उस एटम के न्यूक्लियस से। एंड न्यूक्लियस ऑक्युपाइज ए वेरी स्मॉल स्पेस। एटम का बहुत ही छोटा स्पेस को न्यूक्लियस ऑक्युपाई किया हुआ है, एंड द लार्ज स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अगर इस मटेरियल के हम पूरे न्यूक्लियस को निकाल के कंसंट्रेट करें तो एक पॉइंट के बराबर भी नहीं, ऐसे समझ लो, एक बिंदु भी नहीं होगा पूरा न्यूक्लियस इस मटेरियल। इस पूरे घर के जितने भी एटम्स हैं इसमें, है ना, एटम्स, सिलिका है, कार्बन का भाई, कार्बन के नीचे सिलिका है, बालू में सब, सीमेंट है, सीमेंट में अदर बहुत तरह के एलिमेंट्स हैं, ईटा है, बालू में सिलिका है, ईटा में सिलिका है, ठीक है? सिलिकॉन है, और भी जितने तरह के एलिमेंट्स हैं उन सब को हम निकाल लें अलग, और सबके न्यूक्लियस को निकाल लें तो भी पॉइंट में समा जाएगा वो। ओके, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये जो स्पेस है, ये जो मटेरियल का, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई की। बेसिकली electrons of the atoms are involved in the formation of the bonds। और न्यूक्लियस उसके सेंटर में, एक चम्मच न्यूक्लियस हो जाएगा तो उसका भार पृथ्वी से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा समझ, इतना छोटा है। और इसके ब्रेक होने से क्या होता है, मास का, तो सारा मास कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस, समझे बात को। तो इसको फिजन अगर तोड़ेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ यह ज्वाइंट है, और इसको तोड़ने से यह अलग अलग हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग। और इस चक्कर में क्या होगा, कुछ मास का लॉस होगा और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। इसी द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, यू ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235, उसके बाद अदर एलिमेंट्स आर क्रिएटेड। क्या कह रहे थे, सो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कहां से यहां तक आ गए, वोल्टेज से, चार्ज से। तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड इन द न्यूक्लियस, तो इग्नोर दिस फॉर नाउ। बेसिकली क्या होता है, ये कहीं फ्लो तो कर नहीं सकता, जा नहीं सकता, यही जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, समझे। तो इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। सो अब देखिए, अगर हम इस नेगेटिव टर्मिनल पर, अगर एक टर्मिनल पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, अगर यानी इन दिस रीजन द एटम्स आर हैविंग एक्स्ट्रा न्यूट्रो इलेक्ट्रॉन्स, तो उन पर निगेटिव चार्ज आ गया है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस जो है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है,
चार्ज इज बैलेंस्ड, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स अगर है तो आप क्या कहोगे, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेटेड है ना। अब इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक तरह से अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है तो निगेटिव चार्ज, these negative charge can flow towards positive charge। ओके, इसमें पोटेंशियल आ गया एक्यूमुलेशन के बाद। अगर ये न्यूट्रल होता तो कोई पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा यहाँ से, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन। सो इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू, अगर इसको स्केप रूट मिल जाए, इट विल ट्राई टू स्केप और फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इन ए कंडक्टिंग मटेरियल, कोई कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना। अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल वायर से कनेक्ट हो जाए इसका अर्थ में मान लो, then electrons will flow, electrons will go towards the earth। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ सब अर्थ में चला जाएगा। यहाँ प्लस प्लस लिख दिए। तो बात का ध्यान रखिए कि अर्थ, आप लोग सुने होंगे अर्थिंग, अर्थ हैज ऑलवेज जीरो वोल्टेज। इनफाइनाइट है, कितना भी इलेक्ट्रॉन समाते जाए अर्थ में वो लेते जाएगा लेते जाएगा। और अगर इधर कांस्टेंट सप्लाई है अगर इलेक्ट्रॉन्स का इस टर्मिनल पर, तो ये कॉन्स्टेंटली द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस सर्किट। इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन का सप्लाई और वायर है, इट विल फ्लो टू द ग्राउंड, चला जाएगा। समझ रहे हो बात को, इसका जीरो, इसी को हम वोल्टेज के रूप में नापते हैं। कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, एंटाइटी के द्वारा हम सूचित करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज, यानी वोल्टेज इज बेसिकली द पोटेंशियल। जैसे कोई वस्तु कितनी हाइट पर रखी हुई है, अगर नीचे रखा हुआ है और उसको हम गिराएंगे तो कम फोर्स से गिरेगा, पहाड़ पर रख दिया और वहां से गिरेगा तो ज्यादा फोर्स से, जब ग्राउंड पर इंपैक्ट होगा उसका तो ज्यादा फोर्स से होगा। हाँ, कोई चीज को अगर हम यहाँ से गिराए, हल्के से गिरा और ऊपर से गिरा देंगे तो जोर से गिरेगा, है ना। कोई यहीं से कूद जाए सीढ़ी से, कुछ नहीं होगा, 3 मंजिला से कूद जाए तो फट जाएगा तरबूज जैसा, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ भी, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल होगी, कम करंट ट्रेवल होगा। और ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेटेड, so that means here the voltage is high, potential energy is high. If it is connected, then it will more and more electrons will travel, so the current will high. So current is directly proportional to the voltage। okay, इसको आप ऐसे समझ लो, voltage is equivalent to potential energy and current, that is current का यूनिट एम्पियर है, is equivalent to kinetic energy। ऐसे समझ लो। हालांकि काइनेटिक सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं इसमें मेटल में लगभग लाइट के स्पीड से, उससे लाइट का स्पीड नहीं, उससे कम ही रहेगा, बट उसके इक्विवेलेंट। सॉरी, अब यहाँ पर हम ये सब पंखा टीवी ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला रहे हैं, क्या करते हैं, इसी सर्किट में हम अपना कोई सामान ऐड कर दिए, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये सर्किट है, बाहर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस सामान में गया, चाहे टीवी आयरन हीटर फ्रिज, वो उस इलेक्ट्रॉन को लेके फिर उसका अपना सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका अपना है सब मैकेनिज्म। वो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ, वो काम हुआ, वर्क हुआ, यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी। और वर्क होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ तो जमा होगा नहीं, अगर यहाँ जमा हो तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी,
काम करना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहना चाहिए, तभी ना ये यहाँ पर वर्क कर पाएगा। यहाँ पर फिर इसका इलेक्ट्रॉन इज अर्थड, तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्लो करेगा, इस सामान को पूरा फ्लो करेगा। जब ये अर्थ से कनेक्टेड रहेगा, अर्थ से नहीं कनेक्टेड रहेगा तो इसमें भी नहीं जाएगा वो, और यहाँ से भी नहीं निकलेगा। ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, और इसके बीच में हमारा कुछ प्लांस लगा, उससे हम काम निकाल रहे हैं। यही हो रहा है, इसलिए इतना हमको बस समझाना पड़ा आपको, आप वोल्टेज समझो। ओके, more and more charge is accumulated at the surface, then that surface is having the high voltage. If less charge is accumulated at that terminal or surface, okay, generally यहाँ पर terminal कहना उचित रहेगा, terminal, then it is having low voltage. Okay, देखो ऐसे होता है, फॉर्मूला है ये, वोल्टेज इज इक्वल टू रेसिस्टेंस प्लस करंट, रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है वोल्टेज बटा करंट। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रहा हो, हमको याद नहीं पड़ रहा, यही होता है, 12th में पढ़े थे, बहुत बार, उसके बाद रिवाइज भी, एनीवे यही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या हम कह रहे हैं कि देयर इज ए वोल्टेज पोटेंशियल, वोल्टेज ग्रेडियंट। अब आप देखेंगे अक्रॉस द plasma membrane of the neutrons, you will see figure like this, more and more. The negative charge is accumulated inside. इसका मतलब there is a presence of positive charge outside. So here what you see, there is a difference, voltage difference. यहाँ पर एनर्जी accumulate है, charge accumulate है, this will try to go towards this, इसका हम बाद में मैकेनिज्म आपको समझाएंगे। बेसिकली कंडक्शन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन ये वर्टिकल एडजस्टमेंट के साथ ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है। फिगर दिखाओ हमको इसमें, उसमें बुक में कैसा फिगर है, थोड़े से दिखाओ, वही समझ जाएंगे। ठीक है, एनीवे, अब क्या होगा, अगर वोल्ट में ज्यादा डिफरेंस है तो द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, वोल्ट में अगर डिफरेंस है देन दिस चार्ज विल फ्लो। If the voltage changes by a large enough amount, over a short interval, the neurons generate an
इलेक्ट्रोकेमिकल पल्स, इसको आप करंट समझ लीजिए। ये करंट हो गया, electrons will flow, and this electrochemical pulse is called an action potential, क्योंकि इसमें कोई एक्शन करने का पोटेंशियल है। दिस एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यही करंट है, सो यह करंट रैपिडली ट्रेवल कर सकता है बॉडी में। सो दिस एक्शन potential, see the instructions from these vagus nerves comes to the AN node in no time. This action potential travels rapidly along the axon and activates synaptic connections as it reaches them. These signals can be excitatory or inhibitory, depending upon which type of neurotransmitter is released in the synaptic cleft. कहीं पर आप देखोगे डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, कहीं पर आप इपिनेफ्रिन देखोगे, कहीं पर एसिटाइल कोलिन देखोगे, कहीं पर ग्लूटामेट देखोगे। So synaptic signals may be excitatory or inhibitory, that is either increasing or decreasing the इसको छोड़ो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना समझो। द नेट वोल्टेज, ये सब अभी पहले आप इतना समझो, यही बहुत है बस। सिग्नल्स एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरह के हो सकते हैं। यह अब देखिए नर्वस सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। इसका प्राइमरी सेल न्यूरॉन्स है, ओके, और इस न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट में आप सिर्फ इतना जान लीजिए, these neurons are generated by neural stem cells. Okay? Neurons are generated by neural stem cells.
न्यूरल स्टेम सेल्स गिव राइज टू, अभी बताया एक सेल का नाम न्यूराइट, जिसमें ना एक्सॉन है ना डेंड्राइट है, न्यूराइट। दिस इज द इंटरमीडिएट टाइप undifferentiated, this one is also undifferentiated neural stem cell। न्यूराइट देख के भी आप नहीं कह सकते हो कि ये न्यूरॉन है, और ना ही न्यूरल स्टेम सेल को देख के कह सकते हो कि यह न्यूरॉन है, बट वह न्यूरल स्टेम सेल्स है, न्यूरॉन्स को जन्म देने वाला। तो न्यूरल स्टेम सेल्स खत्म हो जाता है फिर, जब तक आदमी एडल्ट लाइफ तक पहुंचता है तब तक। अभी आप में होगा न्यूरल स्टेम सेल्स, इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ इस एज में पर्टिकुलरली माइंड को फोकस करो एक्सरसाइज के द्वारा, कंसंट्रेट करो, डिफ्यूज मत करो डेंड्राइट के जैसा, एक्सॉन जैसा बनाओ, ठीक है, फोकस करो। तो न्यूरल स्टेम सेल्स जो है वो और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। नहीं तो ये एडल्ट होने के बाद, यानी पर्टिकुलरली 20 साल क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद ये स्टेम सेल्स खत्म हो जाएंगे। मेडिटेट करो, योगा करो, तो ये इससे बहुत कैपेसिटी बढ़ती है। तो न्यूरल स्टेम सेल्स कन्वर्ट इनटू न्यूराइट, and this neurite gives rise to differentiated neurons, differentiated cells, differentiated nervous system cells, that is neurons, differentiated nerve cells, that is neurons. And this process happens during childhood. हाँ हेलो, हाँ जी मैंने हम चाइल्डहुड में हो रहा है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब निर्माण, न्यूरोजेनेसिस। दिस न्यूरोजेनेसिस सीजेज, हॉल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है इन द एडल्टहुड। The next we will learn in the next class. Okay? कहाँ तक पढ़ाए थे ये हमको ध्यान दिला देना। आई थिंक इसके बाद हम लोग को ये न्यूरॉन के टाइप्स डिस्कस करना, ठीक है।